الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد حب الوطن من الإيمان معزز و مکرم سامعین کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اعظام اور عزیز طلباء و طالبات، وطن کے دشمنوں سے ہم کبھی ہمدم نہیں رکھتے، وطن کے دشمنوں سے ہم کبھی ہمدم نہیں رکھتے، اس ملک سے اونچا کوئی پرچم ہم نہیں رکھتے، تلاشی شوق سے لے لو ہمارے گھر اور مدرسوں کی، تلاشی شوق سے لے لو ہمارے گھر اور مدرسوں کی، ہم جہاں پر قرآن رکھتے ہیں وہاں بم نہیں رکھتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم ہندوستانیوں کے لیے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ پورے سال میں دو دن انتہائی تاریخ ساز دن ہے، ایک 15 اگست، دوسرا 26 جنوری، یعنی آج کے دن ملک کے کونے کونے میں ملک کا ہر باشندہ انتہائی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ جہاں جو بھی ہے، جس حالت میں ہے، خوشی اور شادمانی کا اظہار کرتا ہے اور ایک ہندوستان کے ذمہ دار ناگرک ہونے کا ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، یاد رکھیے، یہ آزادی، یہ جشن جمہوریہ ہمیں یوں ہی نہیں ملا، ایک دو انگلی کٹا کر کے نہیں، ایک دو سال احتجاج کر کے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بڑی کہانیاں، لمبی داستانیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ ملک کا اس وقت ملک کا ہر باشندہ اس ملک کو آزاد کرانے میں آزاد کس سے کرایا؟ ایک ظالم جابر حکمراں سے، یعنی انگریز کے چنگل سے۔ یہ ملک آزاد ہوا 1947، 15 اگست 1947 کو، اور یوں ہی آسانی کے ساتھ آزادی نہیں ملی۔ واسکو ڈی گاما کے مدد سے ایک عربی ملاح پہلی بار کلکتہ کی سرزمین پر تشریف لاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ اپنے ایک کمیٹی تشکیل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ اس ملک میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہیں انگریز۔ اور 101 فوج کی تعداد، اور وہ کمپنی کا ایجاد کرتے ہیں، کمپنی کا نام ایسٹ انڈیا رکھتے ہیں۔ کمپنی کے اندر مال و دولت کی جگہ نام پر ہتھیار کا ایجاد کرنا، اور اس کے اندر کام کرنے والوں کے نام پر اپنے اپنے فوجوں کو تیار کرنا، یہ انگریزوں کی سازش تھی، ان کا مشن تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے بات آیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی، اور سب سے پہلے اس روئے زمین پر جس کی شہادت ہوئی وہ ہے نواب سراج الدولہ 1757 عیسوی کے اندر۔ وہ پلاسی کی سرزمین میں جان شہادت کو نوش کیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پتہ چلنے لگا کہ یہ ملک جو ہے انگریز اپنانا چاہتا ہے، قابض ہونا چاہتا ہے، ہمارے پیارا ملک وطن عزیز کو ہڑپ لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد شیر منصور سید ٹیپو سلطان صاحب 1999 کے اندر مردانہ طاقت حملہ کرتے ہیں، اور پوری آزمائش کے ساتھ کرتے ہیں، پوری طاقت اس میں لگاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کا مزار آج بھی میسور بنگلور کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد کلکتہ کی سرزمین سے ایک چنگاری نکلتی ہے، اور یہ چنگاری کلکتہ، بہار،
उत्तर प्रदेश, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, फिगर जगह में चिंगारी शोले में बदल जाती है और वो शोला यूं बदलती है कि पूरे हिंदुस्तान में जो है मिशन जारी होता है कि किसी तरह से भी इस मुल्क को अंग्रेज के चुंगल से, अंग्रेज के पंजे से हमें आजाद कराना है। उसी दौरान मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तारीख बड़ी लंबी है, मैं शॉर्टकट बताता चलूं कि उसी दौरान शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा जारी किया और खुल्लम खुल्ला कहा कि हिंदुस्तान का हर बाशिंदा के लिए, हर फर्द के लिए अब अंग्रेजों से लड़ना, उनके फौज में भर्ती होना फर्ज है, उनके खिलाफ लड़ा जाए। और एक दो आदमी से ये बात नहीं बनेगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे के सारे मिलकर इस मुल्क को आजाद करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने मिलजुल कर इसमें कुर्बानियां दी। बहुत से लोग, तारीख के किताबों के अंदर आता है कि एक एक दिन के अंदर 5-5 हजार उलमाए किराम को शहीद कर दिया जाता था, फांसी के फंदों पर चढ़ाया जाता था। और उलमाए किराम, मुसलमान हिंद, बाशिंदान हिंद खुशी बखुशी फांसी के फंदों को छोड़ लेते थे। क्यों? अपने जायदाद के लिए, अपने प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं, हर जगह, बल्कि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। किससे? अंग्रेजों से। और धीरे धीरे यहाँ बढ़ती रही पूरे मुल्क के अंदर। अंग्रेज भी अपना जोर लगाते रहे कि हमें पूरे मुल्क के अंदर काबिज होना है, कब्जा करना है। इधर उसके खिलाफ भी जंग छिड़ गई और गए बगाए हर जगह ये नक्शा खींचा गया। शाह शहीद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके एक साथी पूरे मुल्क के अंदर दौरा कर करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का हुक्म दिया, आर्डर दिया। और उससे यह साबित हुआ कि आप जो है खाना पीना हराम हो जाए, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़ना है और इस मुल्क को आजाद करना है। फिर एक मरतबा 34 उलमाए किराम की एक जमात ने इस जमाने में फतवा लिखा कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फर्ज है। इस आवाज में सभी लोग लब्बैक कहते हुए अपने घरों से, अपने कारोबारों से निकलकर एक ही मिशन था कि इस सारा हिंदुस्तान को, वतन अजीज को हमें इस अंग्रेज के चुंगल से बचाना है। सभी ने इस फतवा पर लब्बैक कहा, यहाँ तक हिंदू भाई भी आगे आगे रहे और कई लोग शहीद भी हुए। आज हम पर इल्जाम लगता है, गलत इल्जाम लगता है कि हम वफादारी नहीं करते। इल्जाम गलत लगता है कि वफादारी नहीं करते। इल्जाम गलत लगता है कि हम वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं, अदाकारी नहीं करते। बुरा वक्त जब जब आता है वतन पर है वतन वालों, बुरा वक्त जब जब आता है वतन पर है वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, नहीं करते। तारीख की पूरी हिस्ट्री के अंदर, पूरी तारीख के अंदर अगर आप देखेंगे कि मुसलमान, हिंद के मुसलमान सफी अव्वल के अंदर नजर आते थे। और आज हम भी इस मस्जिद के अंदर ये याद करें कि जब भी कोई ऐसा वक्त आएगा, जब भी हमें मौका मिलेगा, हम इंशाअल्लाह सफी अव्वल के अंदर आने की कोशिश करेंगे, सफी अव्वल के अंदर रहेंगे। क्योंकि हमारा आवाज जागने इस वतन अजीज के लिए जान कुर्बानी कर दी। कितने उलमाए किराम शहीद हुए, आप बिहार से लेकर बंगाल तक, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से लेकर कानपुर तक और दिल्ली से लेकर लाहौर तक, कोई ऐसा रास्ता नहीं, कोई ऐसा दरख्त नहीं जहां पर हमारे उलमाए किराम की गर्दनें नहीं लटक रही हैं। उन्होंने जाने की कुर्बान परवाह नहीं की, अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं की, अगर परवाह की तो सिर्फ और सिर्फ वतन अजीज की। इस मुल्क की हिफाजत कैसे हो? फिलहाल से कोई तारीख शायद है कि एक दिन ऐसा भी हुआ कि एक ये नारा लगने लगा कि 1946 के अंदर ये नारा लगने लगा कि अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो। जिस दिन अंग्रेज टीपू सुल्तान शहीद को
टीपू सुल्तान को शहीद किया, उसी दिन साथे अंग्रेज ने ऐलान कर दिया कि हमारा रास्ता हमवार हो चुका है, हमारा रास्ता अब खुल चुका है। इसके तरह से दूसरे लोगों के अंदर वो जरूरत और ताकत नहीं जो हमसे मुकाबला कर सकते। वो इसी खुशी के अंदर दिल्ली के रास्ते की तरफ कोशिश करने लगे, यहाँ तक कि दिल्ली के लाल किले के अंदर भी कब्जा करने की कोशिश करने लगे। उस वक्त मुगलिया सल्तनत की हुकूमत थी और उस वक्त के बादशाह जो है हुकूमत धीरे धीरे कमजोर होती गई। उसके बाद से जब हमारा उलमा किराम को पता चला, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, आदिल जामिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम उलमा किराम की मौजूदगी में फिर सरगर्म बाजार हुआ और मैदान मार्का का अहसास शुरू हुआ। चुनांचे मैदान का अहसास शामली के अंदर पेश आया और एक उसी जंग के दौरान एक अंग्रेज, बेवकूफ अंग्रेज, कज्जाब मक्कार झूठा अंग्रेज कहने लगे, एक कासिम बता तुझे आज मुझसे कौन बचाएगा। मौलाना मुस्कुराने लगे और कहा कि बेवकूफ अपनी फिक्र करे, तुझे कौन बचाएगा, पीछे देख। वह हमें कहना गुफ्तगू सुनकर वह हमें अंग्रेज हमें पीछे देख मुड़कर देखने लगा। इसी दौरान हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानवी पीछे से अपनी तलवार से वार कर देते हैं और उस अंग्रेज को जहन्नम रसीद कर देते हैं। हमारे उलमा किराम की कुर्बानियां कम नहीं है, हर दौर में कुर्बानियां है, हर फिरके हर जालना से लड़ने की ताकत और जरूरत है। आज हम भी उनके मानने वाले हैं। आज भी अगर कोई जरूरत पड़े इस हिंदुस्तान के अंदर तो आंख आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, और सबसे पहले सफे अव्वल के अंदर नजर आएंगे। इस मुल्क के वतन अजीज के अंदर हर तरह से कुर्बानियां दी। ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखने वाले का नाम और नहीं, अल्लामा इकबाल एक मुसलमान ही था। अजीज तलबा आप लोगों को बताता चलो, ये जो हम तिरंगे का रंग का डिजाइन देख रहे हैं, इसके डिजाइन और कलर करने वाला एक मुसलमान औरत ही थी जिसका नाम सुरैया तैयब है, जिसका ताल्लुक हैदराबाद से था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जिसने दिया वह एक मुसलमान ही था जिनका नाम हजरत मौलाना हसरत मोहानी था। कितनी तारीख आपको गिनाओ, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम नर्सियात के साथ साथ किताबों के साथ साथ अपने अकाबिर की, अपने हिंदुस्तान की, वतन अजीज की तारीख को भी पढ़े, इससे हमारी जानकारियां बढ़ेगी। मेरे मुख्तार बुजुर्ग और दोस्तों, जैसा कि हाफिज साहब ने ऐलान किया कि सालाना इम्तिहान हमारा करीब है, साल का आखिरी हिस्सा चल रहा है और इसके अंदर तलबा अजीज अपने अपने जो है किताबों की तैयारियां भी करते हैं। इसीलिए हम आखिर में यही कहना चाहेंगे कि कुछ चंद सालों पहले न जाने इस वतन अजीज को तिरछी नजर लग गई और हर तरफ से जुल्म और बर्बरियत का शिकार, कभी यहाँ मॉबलिंचिंग, कभी वहाँ मॉबलिंचिंग, जगह जगह पे लोग परेशान हो रहे हैं। अल्लाह जाने किसकी नजर लग गई हमारे वतन अजीज को। हम फिर वही पुराना हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जहाँ एक ही थाली में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खाना खाते थे। या अल्लाह हमारे उस वतन अजीज को, पुराने मुल्क को फिर से लौटा दी। कहीं आमीन। मेरे मुख्तार बुजुर्गों दोस्तों, हम कुछ ज्यादा न कहते हुए अपनी बात इस शेर पे खत्म करते हैं कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। वफादार शहीद